Morning children, today we are going to learn the second chapter of our physics, that is motion in one dimension. Before that we should understand what is motion first. मोशन को समझने के लिए रेस्ट का ऑब्जेक्ट भी समझना पड़ेगा. सो मोशन एंड रेस्ट पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में पढ़ने के लिए एंड देखेंगे. Scalar quantities बच्चों क्या होता है? Scalar quantities means the quantities which have only the magnitude but not having any direction is known as scalar quantity. Once again, the quantities which have only magnitude, that means which can only be measured but it is not having any direction of its measurement, is known as a scalar quantity. Example of the scalar quantities are length, mass, time, temperature. These all are the examples. Even area, volume you can see, distance you can say. So these are the examples of scalar quantities. It can be only be measured, but it cannot be, is not having any direction in which we are measuring that one. That's why if you see the opposite of the scalar quantity is our vector quantity. What is that vector quantity? The quantities which have both magnitude as well as direction is known as वेक्टर क्वांटिटीज. एग्जाम्पल ऑफ दैट मतलब जो क्वांटिटीज़ का जिस डायरेक्शन में हम लोग उसे मेजरमेंट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगा उसका, उसके साथ हम उसे मेजरमेंट भी कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी उसे निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी. ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी? एग्जाम्पल क्या है? मेरे से आप लोगों को डिस्टेंस बोला था, यहाँ पे आएगा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे आएगा. यदि हम लोग स्केलर क्वांटिटी में स्पीड पढ़े हुए हैं, यहाँ पर आ जाएगा वेलोसिटी. Velocity is a speed in one direction, in specified direction is called velocity. Acceleration, force, weight, momentum are some of the examples of vector quantities. तो समझ में आ गया स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज. इन आवर डे टू डे लाइफ्स यू आर लुकिंग इन आवर सराउंडिंग्स, सो मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर. हमारा आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं. उस ऑब्जेक्ट में से बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखिए, आप लोग बुक्स देखो या फिर आप लोग का बैग दिखो, वॉचेस दिखो, रिस्ट वॉच दिखो, या फिर घर पे जो वॉच होता है, या फिर घर पे जो हमारा टॉयस होते हैं, या फिर यूटेंसिल्स लाइक इन किचन, दोज आर लाइंग, दोज यूटेंसिल्स आर देयर, दे रिमेन इन द सेम प्लेस. जब हम लोग नेक्स्ट डे मतलब दूसरा दिन जब हम लोग जाते हैं किचन को अपना काम करने के लिए या फिर कुछ खाना पकाने के लिए, एंड हम लोग जहाँ पे रखे होते हैं सभी चीज़ को, जब हम वहाँ से ढूंढते हैं वही चीज़ हमें मिलता है. नहीं बच्चों, मिलता है. जैसे कि आप लोग अपना अपना बुक्स एक कोने में, और कहाँ पे, एक टेबल में, दूसरा बेडरूम में, और तीसरा और एक सेल्फ में, ऐसे होता है आपका बुक्स. आपको पता चल रहा है कि अरे यार मैं तो वो टेबल में रखा था, कहाँ गायब हो गया, क्या बुक चला गया वहाँ से, चल के चला गया? ऐसा नहीं होता, हम लोग भूल जाते हैं. इसका मतलब नहीं कि बुक चले जाता वहाँ पे, इट्स नॉट दैट वन. बट आई एम टॉकिंग अबाउट रेस्ट. Those objects are remain in the rest. Almost all non-living objects are which are there as an article, as a essential commodity in our house. They all remain in the same place where we have kept them. That's why it is called as a rest. I'm going to show you some objects you can see here. ऐसे कि आप लोग देख रहे हो कि एक बॉल है. So it was lying on the ground. So, ball lying on the ground until and unless it is struck by any object, it remains in the same place. Not only this is the actually Newton's first law के साथ दिखा रहा था वो. आप देखिए चप्पल जहाँ पे हम लोग रखते हैं, यहाँ पे मैप्स अवेलेबल इन आवर हाउसेस, और टीवीज, और कैमरा, और कंपास, पर्स, then after bags, books, pens, and then some of the monuments, they all remain in the same place. ओ वहीं पे होते हैं, हम लोग उनके पास जाते हैं, लेके आते हैं, या फिर घूमने जाते हैं monuments को, जैसे कि इसलिए उसे बोला गया rest objects. That means a body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its immediate surrounding, while a body is said to be in motion if it changes its position with respect to its immediate surrounding. मैं आप लोगों को दूसरा एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा. ये देखिए, a moving aeroplane is an example of the motion
ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। सो हम इसे बोल सकते हैं मोशन, क्योंकि हम जब इसे देखते हैं ये चल मतलब उड़ के जब जाता है तभी, और कुछ देर के बाद जब देखते हैं तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, दैट मीन्स इट इज मूविंग। So body is said to be in motion if it changes its position with respect to its immediate surrounding. Is called as a what बच्चों, क्या बोलते हैं उसे? मोशन बोला जाता है, उसे मोशन बोला जाता है। और एक एग्जाम्पल देखिए आप लोग। So when you are playing cricket, when you are playing football, then you are kicking the ball, and when you are playing also table tennis or tennis in the court, as you are striking the ball also moves and crosses the net and it moves the opposite side of the both the team. So this is an example of body is in motion. That means it body is in motion if it changes its position with respect to its immediate surrounding. Another example आप लोग अपना डे टू डे लाइफ में देखे होंगे शायद, like leopard, when he tries to catch its prey, then it runs behind its prey and catches immediately or runs very faster as you are looking that it changes its position with respect to its surrounding. That's why we say it is a object is in motion. मैं और एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा आप लोगों को। देखिए आप लोग जब ट्रेन में बैठ के जाते हैं तो आप लोग का कंपार्टमेंट में जो हमारे रिलेटिव्स, हम जिसको हम बाय बाय बोल के जाते रहते हैं, वो क्या है, वो लोग रेस्ट में है ना आप लोग रेस्ट में हो। आपको लगता है आप लोग रेस्ट में हो क्योंकि आप लोग ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो ना, ट्रेन के अंदर चल रहे हो, आप लोग बैठे हुए हो ट्रेन के अंदर। बट उन लोग के लिए हम लोग क्या है, मोशन है, क्योंकि हमारा पोजीशन बदलते जा रहा है। हम लोग जहाँ पे है, जहाँ पे थे वहाँ पे नहीं है। ट्रेन में वही कंपार्टमेंट में वही सीट में हम लोग बैठते, नो डाउट, बट वी आर इन मोशन, वी आर चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू आवर इमीडिएट सराउंडिंग। हमारा सराउंडिंग के हिसाब से हमारा पोजीशन बदल रहा है, इसलिए हम बोलते हैं वी आर इन द स्टेट ऑफ मोशन। समझ में आप लोगों को? सो स्टेट ऑफ मोशन, बट हमारे लिए दे आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, दे आर इन द स्टेट ऑफ rest. So remember, so when object does not change its position with respect to the surrounding is called as a rest. If it changes its position with respect to the surrounding is called as a motion. Next comes one dimensional motion. बच्चों, what is one dimensional motion? Where a body moves in a straight path in one direction. When a body travels in a straight path in one direction is called as a motion of the object in one direction. But if a body is moving in a zigzag path or in a curved path in a plane, then it is called motion in two dimensions. If an object is in the space and is moving, then that is called the object is in motion with three-dimensional space, or called three-dimensional. Object has a motion in three dimensions, उसे बोला जाता है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में समझ में आ गया, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। देन आफ्टर वी हैव अंडरस्टूड रेस्ट एंड मोशन एंड वेरियस एग्जांपल्स ऑफ दैट। देन अभी बढ़े मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन। हमारे पास सिर्फ पहला वाला है मोशन इन वन डायमेंशन। यदि हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में बात करें तो हमें आइडिया मिलता है पहले डिस्टेंस के बारे में। व्हाट इज डिस्टेंस चिल्ड्रन? The path covered by the object is called the distance. The path traveled by the object is called distance. And shortest path traveled by the object is called displacement. देखिए आप लोग अब आपका घर से स्कूल जा रहे हो, तो जब आप लोग घर से निकलते हो तो कौन सा रास्ता आप लोग फॉलो करते हो? एक छोटा सा रास्ता जो कि आप लोग को जल्दी पहुंचा देगा स्कूल में, जल्दी आपको पहुंचा देगा, वो वाला रास्ता क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल फ्रॉम योर होम टू योर स्कूल इज द नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। आप लोग घूम फिर के जाओगे, आप लोग इधर जाओगे, अपने दोस्तों के घर जाओगे, उसे बुलाओगे, दूसरा दोस्तों के घर जाओगे, उसे बुलाओगे, तीसरा घर पे जाओगे, ऐसे घूम घूम हर गली और हर मोहल्ला ऐसे घूम घूम के जाओगे स्कूल को। तो क्या होगा? 1 घंटा लगेगा, जो कि मिनिमम आप लोग शॉर्टेस्ट पाथ के जाते तो कितना लगता बताइए? 5 मिनट लगता है स्कूल जाने के लिए, लेकिन आप घूम घूम के 1 घंटे के बाद गए तो क्या हुआ? शॉर्टेस्ट पाथ आप लोग ट्रैवल किए नहीं। तो आप लोग जितना ट्रैवल किए 1 घंटे में उसे बोलते हैं क्या? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, बहुत जो कम समय पे आप लोग एंड दूरी भी क्या होता है कि वो दूरी सबसे छोटा होता है और उससे छोटा नहीं हो सकता, उसे बोलते हैं हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ। दैट ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इज डिस्प्लेसमेंट। मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल में दिखाना चाहता हूँ। आई हैव ड्रॉन, लेट मी शो यू टू यू, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। सो फॉर टुडे आई हैव डॉट 3 pages,
please learn that. I'm forwarding in our group all the notes I have prepared for you and the pages what I have taught you. Thank you. Have a good day.